The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं ईएमआर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं, so आपको बहुत ही ध्यान से ये टॉपिक पढ़ना है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप नेट के एग्जाम देने वाले हो सितंबर में, सो यू कैन ज्वाइन रिविजन क्लासेस एंड आप मॉक टेस्ट से बहुत ही बेटर वे में प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फोरेंसिक साइंस नेट एग्जाम के लिए। If you are preparing for the next cycle, you can join the classes for the next cycle criminology and forensic science में registrations चालू हैं। अगर आप NFSU entrance exam देना चाहते हैं 2023-2024 के लिए, so you can join classes again। हम एक वीक में इसके registrations close कर देंगे, उसके बाद फिर आप classes join नहीं कर पाएंगे। so अगर अपनी आप study continue रखना चाहते हैं तो you can join NFSU classes। अगर आप DUET, CUET, PG के एग्जाम देने वाले हैं, so again we have special course for that. You can join and quickly give your exam in a best way. So do join our classes. If you are preparing for scientific officer exams, we have special courses for that as well. And all the students who all are in semesters right now, in odd semesters, you all can join the semester classes and you can score great. So let's start today's class. It is about electromagnetic radiations. So we all know that it is radiation and it is electromagnetic radiations. So यहाँ पे दो words जो है वो merge हो रहे हैं, electro and magnetic. So we have two different words merged together and it is making electromagnetic radiations. जब electromagnetic field में radiations होती हैं उन्हें हम कहते हैं electromagnetic radiations. So electromagnetic field क्या है? Electric field या magnetic field या वो radiations जो मिलके या तो electric field create करती हैं या तो magnetic field create करती हैं. So electric field and magnetic field they have similar properties. So इसी वजह से हमने इसको साथ में merge कर दिया और बोल दिया electromagnetic field या electromagnetic radiations और इनकी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वेव्स के फॉर्म में होती हैं एंड वो कौन से फील्ड में आप देख सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही ये प्रोपगेट होती है, यहीं से ही ये शुरू होती हैं। okay, and they have radiant energy as well. So ये सारी की सारी electromagnetic radiations energy contain करती है, different of course, different amount of energy according to their capacity they contain, and it includes radio waves. We have one type of electromagnetic radiation, that is radio waves. We have microwaves, we have infrareds, we have visible rays or visible lights, we have ultraviolet rays, and we have X-rays and gamma rays. ये सारी की सारी rays radiations मिलके electromagnetic radiations create करती हैं। अब हम forensics में electromagnetic radiations क्यों पढ़ते हैं? So forensics में हम electromagnetic radiations पढ़ते हैं क्योंकि हम electromagnetic radiation special instruments में use करते हैं elemental analysis के लिए। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट या तो फिर एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे या तो फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं स्पेशल वेवलेंथ्स पे। सो उसके बेसिस पे हम फोरेंसिक्स का अप्लाई करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल कंपैरिजन का। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्राइम सीन एंड मैंने उसका एलिमेंटल एनालिसिस किया और मुझे पता चल गया विजिबल रेंज में या लाइट अब्सॉर्ब करती है, तो जो मेरा सस्पेक्टेड सैंपल होगा, जो मेरा सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा, उसकी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन करा के देखूंगी और अगर वो भी विजिबल रेंज पे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही लाइट अब्सॉर्ब करता है, इट मींस दे हैव सेम ओरिजिन। सो इसी तरीके से हम फोरेंसिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज करते हैं एंड हम इंस्ट्रूमेंट्स में भी डिफरेंट रेडिएशंस यूज करते हैं। सो वी यूज ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस लाइक रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स। सो हम जो घरों में माइक्रोवेव्स यूज करते हैं वो यही माइक्रोवेव्स होते हैं। Okay, so all electromagnetic radiations have specific properties, capacities and different wavelengths जिस पे वो stay करते हैं। So वो हम आगे पढ़ेंगे। That's why it makes these, that's why our electromagnetic radiations are really very unique and really very important. अब हमें ये all these electromagnetic radiations create electromagnetic spectrum all together और इनका movement कैसा होता है? इस तरीके का movement होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनका मूवमेंट इस तरीके का होता है। ओके, सो नेक्स्ट दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जिस स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे थे, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इनका अरेंजमेंट कैसे होता है? सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती है इंफ्रारेड, फिर आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट हमारे
विजिबिलिटी वाला रेंज है जिसपे आप जिन्हें देख सकते हो। आप रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते, आप माइक्रोवेव्स को नहीं देख सकते, आप IR, एक्सरे, गामा रेज को नहीं देख सकते। हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज पे ही देख सकते हैं। इन्हें कहाँ से कहाँ तक चलती है, 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक चलती है। सो वी हैव रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम 700 nm to 400 nm, या फिर 400 nm से 700 कह लो, इट्स ऑल सेम। सो ये हमारा विजिबल रेंज है। देन वी हैव UV रेज एंड एक्स रेज एंड गामा रेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेव लेंथ है इट इज चेंजिंग। ओके, सो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं, ये आपको याद रखना है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है जो आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है, दैट मीन्स वो सारी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है उनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। दे हैव शॉर्ट वेवलेंथ। ओके, दे हैव शॉर्ट वेवलेंथ। एंड जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। सो यहाँ पे रिमेंबर दिस थिंग, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ लोएस्ट होगी। ठीक है, एंड रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होती है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड जो सारी की सारी वेवलेंथ है, देखो रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, एंड इसके बाद माइक्रोवेव्स की उससे कम, इंफ्रारेड की उससे कम, फिर इसी तरीके से हम लोवेस्ट में जाते जाते हैं। एंड गामा रेज की सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होती है एंड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की हम बात करें तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफरेंट मानते थे, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफरेंट मानते थे, इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट रखते थे, मैग्नेटिज्म को डिफरेंट रखते थे, एंड बाद में फिर हमने इसे मर्ज कर दिया। मैंने वही बोला ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो इन 1837 कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि क्लार्क मैक्सवेल, एक स्कॉटिश फिजिशियन थे, उन्होंने एक कंबाइंड थ्योरी बनाई जो कि थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी। मैग्नेटिक फील्ड थे, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे हम EM रेडिएशन या EMR से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये कंटेन करते हैं ये सारे के सारे वेव्स, लाइक माइक्रोवेव्स, टेलीविजन वेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज एक्सेट्रा। ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हमने देखा, ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ओके, अब ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि मैग्नेटिज्म के जो पोल्स हैं और जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो सेम ही बिहेव करते हैं, है ना। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करी है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक पोल्स है एंड इलेक्ट्रिकल पोल्स है दोनों सेम ही बिहेव करते थे। इसी वजह से ये भी एक रीज़न था कि हमने इसे मर्ज कर दिया। अब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो मैग्नेटिक पोल के जो अपोजिट पोल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, जस्ट लाइक आयंस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। सो ये भी यहाँ पे सेम था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह ही रिपल्शन हो रहा था और अट्रैक्शन हो रहा था अपोजिट चार्जेस में। इसी वजह से हमने फिर ये वाला भी बोला कि ठीक है, ये पॉइंट भी कंसीडर करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम, मैग्नेटिक पोल्स एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस दोनों सेम ही बिहेव कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था मोशन में, जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में मोशन देखते थे तो मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता था। ओके, जब एक वायर को आप कॉइल कर दोगे और उसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर सप्लाई करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट कर रहा था। दैट्स वाई जो हमारे फेवरेट साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, 1873 में उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें दी। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं ये फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होती है। किसके फॉर्म में, फोटोन एनर्जी के फॉर्म में। ये बंडल्स हैं लाइट के, दीज आर द बंडल ऑफ लाइट which work in a harmonic way। एक हारमोनी में ये वेव करते हैं, ये एक हारमोनी में ट्रैवल करते हैं इन द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल इसी तरीके से। सो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेवलेंथ कौन बनाती है, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ, दोनों मिलके एक वेवलेंथ बनाती है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसी वेवलेंथ के बेसिस पे ही हम डिफरेंट रेडिएशंस को
सेपरेट कर पाते हैं स्पेक्ट्रम में, एंड दे हैव डिफरेंट एनर्जीज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ. एंड हियर वी हैव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. सो पहली प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड की. एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस from the middle of the wave to the maximum vertical displacement of the wave. So ये होता है amplitude. जो सबसे ज़्यादा amplitude रखता है, they have higher energy, and the lower amplitude have lower energy. जो amplitude है, it tells us about the brightness and intensity of the wave or of the electromagnetic radiation. Frequency क्या है? Frequency is nothing but the number and cycle per second in the electromagnetic radiations. आपको ये चीज़ याद रखनी है कि frequency is directly proportional to energy. Frequency एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ये तो गोल्डन रूल आपको याद रखना है. पीरियड इज कॉमनली नोन एज टी. इट इज द टोटल टाइम दैट अ वेव टेक्स टू ट्रैवल वन वेवलेंथ. एक वेवलेंथ को टाइम जितना लगता है, एक वेवलेंथ ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है, उसे हम कहते हैं पीरियड. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज दी लैम्डा बाई न्यू. सो यहाँ पे वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी मिलके वेलोसिटी क्रिएट करते हैं. एंड दी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वी हियर इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज वेवलेंथ, एंड ऑल टुगेदर इट इज वेलोसिटी. तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है. ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं. मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा एंड न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं. एंड एवरीथिंग इज ऑल क्लियर आई गेस. अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ऑल ऑफ आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू. फोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ आवर क्लासेस, डाउनलोड द ऐप. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. टिल देन टेक केयर.